Good evening. So, without taking much of your time, today we will discuss about the Kurukshetra. As you all know that this magazine, Kurukshetra, why is it so important UPSC point of view? I don't need to tell you the importance of these two magazines, either Yojana or the Kurukshetra. So today we will discuss uh, about the some topics which is very important. Those who are going to appear the UPSC on 5th of June this year. I think the date is not so far. I think today is the 29 and on 5th of June the UPSC has scheduled its examination. So uh, UPSC point of view, we will see some topics एंड वी विल ट्राई टू कवर इट थ्रू दिस मैगजीन्स. हमें पता है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो यूपीएससी में डायरेक्ट जो डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, कितने तो इन सब के बारे में एक्चुअली हम कुरुक्षेत्र और योजना के थ्रू ही हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में हम जान पाते हैं. तो now we will start discussing about the Kurukshetra magazines. So now as you can see over the screen that there is a rural connectivity. So it is obvious that this magazine is going to talk about and discuss about the rural connectivity and what are the ways that these villages have been connected through the various types of modes. Okay, so now we will see the editorial page of this magazines. As if it is not visible, we will let you know what is written over here. You don't need to be so panicked over here. Okay, so now it has been said in the magazine that the India is traditionally an agrarian economy. Nearly 69% of its population still resides in the villages. सबको पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे एग्रीगेरियन, इफ वी आर टेलिंग यू दैट इंडिया इज ए एग्रीगेरियन कंट्री, दैट मीन्स एग्रीगेरियन इकोनॉमिक कंट्री, दैट मीन्स द मोस्ट ऑफ द people of the populations is basically dependent and have the profession agriculture. Nearly 69% of its population still resides in the villages. तो ऐसा बताया गया है कि 69% जो populations हैं, टोटल populations का, वो आज भी वो गांव में ही रहती हैं. The penetration level of the new technologies and the ICT platforms is continuously increasing in rural areas, thus enhancing the rural connectivity. जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से और न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा आईसीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा आज बहुत ही चीज़ें लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गई हुई हैं. पहले ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज वी वर फार बिहाइंड एंड वी वर नॉट सो मच डेवलप्ड एंड देयर वाज नो development in the science and technology now. But what if you go back, if you see in your past 10 years back or 15 years back, now that time you won't be have so much of accessibility of the technology. Now what we see, now what we feel and see that the most of the people are dependent on the technologies. Now we also have seen that most of the works that we are doing with the help of technology only. So it has made our life very easy and smooth. Now we can access anything and whatever we want with the help of technology, new technologies. And with the advancement of technology, our life has become more smooth and ease. So this the now what we, and I want to tell you that with the advancement of the technology and the ICT platform, the continuously in the rural areas, their life and the accessibility have become very easy. जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक चैप्टर है फर्स्ट, इकोनॉमिक जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें दिखाया गया हुआ है कि जो गांव और जो विलेज
एक्चुअली वो शहर के पास में होती हैं, वो उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी वो अच्छी होती है, अच्छी खासी होती हैं. Access to its digital as well as the physical infrastructure like the road, railways, airports, hospitals, etc. can be transformative, helping citizens to improve their livelihood and enabling business to flourish. Okay, so now what is given over here, that the infrastructure, the physical infrastructure, if we talk about the physical infrastructure, that means we are talking about the things which is making our life very smooth and very easy, like roads and the railways and the airports and the hospitals. Now we have seen in our past that when I was a child, at that time when I was living in the villages, that at that time there was no accessibility of you can say good hospitals, and there was no even good roads at that time. But now the time has changed. Now we can see that the all the maximum villages have been connected with the nearby towns and cities. So what is the benefits of connectivity of the villages to the towns and cities? सो हम ये देखते हैं कि अगर कोई टाउन, अगर वो किसी विलेज से कनेक्टेड है, तो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है, थोड़ी वो फास्ट होती हैं. क्योंकि हमने बचपन में देखा है कि कभी कभी ऐसे होते थे कि अगर किसी को अगर अखबार भी पढ़नी हो, तो उनको उनको जो अखबार जो मिलता था वो दिन में 2 बजे 3 बजे, क्योंकि सारे जगह बंटने के बाद वो फाइनली वो गांव के तरफ जो आती थी, बसेस आती थी, वो लेकर आती थी. तो शाम के वक्त 3 या 4 बज जाते थे या 2 ढाई बज जाते थे एक्चुअली किसी न्यूज़ को पढ़ने के लिए. और उस समय जो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था वो भी एडवांस नहीं था, लोगों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी. आज तो खैर दे कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन द मोबाइल, दे कैन रीड द ई न्यूज पेपर्स, ई मैगजीन्स. सो इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है और जो इजीनेस है वो थोड़ी वो पहले की अपेक्षा वो आज वो काफ़ी अच्छी हो गई हुई है. तो बेसिकली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मैगजीन्स में एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा जो काम जो किए जा रही हैं और काम जो किया जा रहा है एक्चुअली उनके बारे में इन्होंने इस मैगजीन्स में इस मंथ के मैगजीन्स में इन्होंने ज़्यादा फोकस करा है. The government is taking the numerous steps to connect the rural areas with the rest of the country to achieve the vision of आत्मनिर्भर भारत. सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका विज़न क्या है. तो आत्मनिर्भर बनाना उनका मेन मोटो है, और गवर्नमेंट की मेन मोटो है कि लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर बने. आत्मनिर्भर से हमने बहुत चीज़ें हमने देखी हैं कि लोग जो हैं अपनी खासकर अपना जो व्यवसाय है, अपना जो बिजनेस है वो चालू कर रहे हैं. दे डोंट वांटेड एंड द गवर्नमेंट डजंट वांट द पीपल टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड. सो what they basically wanted and expect from the people of the India and people of the country, that they should have their own business setups so that they could generate the employment, not really dependent on the other people for their livelihood. So आत्मनिर्भर बनाने का पीछे मकसद यही है कि हम कैसे अपने देश को, और उनकी जो मेन जो मोटो है, और देश को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का उनका जो ड्रीम है और जो विज़न है, वो तभी हो पाएगा जब पीपल हु दे विल स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स. जब तक वो अपना स्टार्टअप नहीं करेंगे, they won't be able to achieve such targets that we have seen and the government has dreamed of. Therefore, the theme of this issue, Kurukshetra, is dedicated to the rural connectivity. Now, as I already have told you that the theme of this magazine is the rural connectivity. Now, rural connectivity may be through the roads, maybe through the hospitals, maybe through the airports, and by the help of digitalization. So these are the ways that we need to improve, and we need such kind of development so that the villages which are lacking behind and which are very far behind, they could also be developed.
A good road infrastructure connects the rural areas with the nearby urban or the semi-urban areas and ensure a quick flow of services and goods to meet the emerging demands. तो इसमें ये बताया गया है कि हम आसपास गांव के आसपास में जो अर्बन एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनको हम एक उनकी जो कनेक्टिविटी है गांव से हम कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं ताकि वे उनकी जो कनेक्टिविटी की वजह से उनकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी अच्छी हो सके और जो सर्विसेज दैट इज़ रिक्वायर्ड विच कुड बी फुलफिल्ड बाय द कनेक्टिविटी through the villages to the urban and the semi-urban areas. It ensures a competitive advantage and helps in improving the inventory, storage, supply chain and operations management. The article titled PMGSY Changing Nature of India's Rural Roads affirms the role of PMGSY to connect the rural India as since the inception of the PMGSY scheme, more than 6.80 connect rural India as since 6.80 lakh kilometers of roads have been constructed, connecting around 1.6 lakh habitations with the expenditure of 2.6 lakh crore. तो हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट और अगर हम विजन को देखते हो अगर आप लोग को शायद याद हो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद विच इज़ who was the great scientist obviously and the former president of India, उनकी जो विजन्स थी उनका भी विजन्स ये था कि अपने देश को हम कैसे आगे ले जाएं। तो उनके विजन्स में रोड के इम्पोर्टेंस के बारे में भी उनकी जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं एक्चुअली वो ट्रांसपोर्टेशन जो है जब तभी संभव हो पाएंगे जब हमारी जो रोड जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी गांव से कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर हम किसी गांव को एक शहर से अगर हम जोड़ नहीं पाते हैं तो वो उनकी जो डेवलपमेंट एक सही मायने में होनी चाहिए वो डेवलपमेंट हो नहीं पाती है। तो गांव को डेवलप करने के लिए हमारी जो कनेक्टिविटी है वो किसी भी माध्यम से किसी के जरिए या तो वह रोड हो या रेलवेज़ हो इनके द्वारा अगर पॉसिबल हो पाता है तभी उस गांव की डेवलपमेंट जो है सही तरीके से हो पाती है। ऐसा जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि गांव आज से 20 साल पहले अगर देखें, अगर आपने कभी किसी से सुना भी होगा अपने डैड से या अपने दादी से या दादाजी से सुना भी होगा, तो उनके समय में उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी या रोड की जो कनेक्टिविटी थी वो उतनी अधिक वो सुगम नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी वो मतलब उनकी जो सर्विसेज थी वो उन तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज इनकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से क्या है वो लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं एंड दे गेट टू नो द ईच एंड एवरीथिंग्स ऑन द रेगुलर बेसिस। उन्हें पता होता है कि आज यहाँ शहर में क्या हो रहा है, बिकॉज दे हैव द accessibility of the newspapers, they can easily get to know through the newspapers। अब मॉर्निंग में चले जाती हैं, काफ़ी पहले वक्त लगता था, ऐसा होता था एक दिन लेट पेपर आते थे, लेकिन आज क्या है कि हम इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो हम PMGSY के बारे में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है चलाई जा रही है, तो बेसिकली यह क्यों चलाया जा रहा है ताकि हमारे जो सड़क हैं वह एक शहर से कनेक्टेड हो सके, उनकी कनेक्टिविटी बन सके ताकि वो डेवलप्ड हो सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 6.80 lakh kilometers road have been constructed. It is said that government has issued and told that the 6.80 kilometers road already have been constructed। और इसके लिए गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ जो है इस रोड को कनेक्ट करने में खर्च भी आए हैं। द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूरल रोड अंडर द PMGSY have seen massive growth during the last 7 years and emphasis has been given a new technology like green technology। ठीक है, और इन्होंने ये कह रही है इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि इन विगत 7 वर्षों में कैसे जो रोड की कनेक्टिविटी है या जो प्रोग्रेस जो काम जो किया जा रहा है रोड को कनेक्ट करने का, वह इन 7 वर्षों में कितने तेज़ी कितनी रफ्तार से वो आगे वो बढ़ा है। तो जनरली
7 वर्षों का जिक्र इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार एक्चुअली वो सत्ता में आई थी, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करा था। तो 7 सालों में ये एक्चुअली ये दिखाने का प्रयास है कि 7 सालों के भीतर इन्होंने कितने सारे रोड के जरिए कितने गाँवों को और कितने शहर को उन्होंने कनेक्ट करा है। The article Transforming Rural Connectivity states that rural connectivity program requires a robust service enterprises framework with the public and the private stakeholders at the very core. There is a need to create vibrant 4P model, public-private panchayat partnership for inclusive and the sustainable रूरल डेवलपमेंट थ्रू द रूरल कनेक्टिविटी। और इसमें दिखाया गया 4P जो मॉडल है, 4P मॉडल पब्लिक प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप। दैट मीन्स कि इस जो गांव है, गांव की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी तब बनेगी जब कुछ जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं या गवर्नमेंट हैं, वो दोनों मिलकर आपस में काम करें। पब्लिक प्राइवेट पंचायत एंड पार्टनरशिप ये सारे मिलकर काम करें, तभी इनकी कनेक्टिविटी इनकी जो है वह एक सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट उस गांव का हो सकता है। तो विशेष हम जो इनकी जो फर्स्ट जो टॉपिक्स है एक्चुअली वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम कवर अप करेंगे। एक्चुअली जो फर्स्ट टॉपिक है वो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय